Welcome to all participants in this cheerful morning. We are so excited to have you all here to become a part of this workshop. आवाज नहीं जाता है. Myself, Dr. Chaya Lanje from S. Chandra Mahila Mahavidyalay, Sadak Arjuni. Today, we have organized a one-day online state-level workshop on life skill, physical health, COVID-19. Workshop is first time Department of Biology, in Department of Food Science and Nutrition, S. Chandra Mahavidyalay, Sakur. This workshop is related to our life skill and fitness is the most important thing in our life. There is nothing more important than health for any human beings. When we are healthy and fit, we are able to enjoy our life well. So firstly, I introduce to our president, Dr. Ajay Lanjewar sir. Dr. Ajay Sambhaji Lanjewar sir, he is the president of Adivasi Shaikshanik Sanshodhan Sanstha, Sadak Arjuni. He is a very great and famous personality in Sadak Arjuni Taluka because this Taluka is situated in a rural area. 5 women's colleges are 100% granted of arts and home science. CBSE schools, nursing colleges are run by Adivasi Shaikshanik Sanshodhan Sanstha, Sadak Arjuni district, Gondia. Our college was established in the year 2008 by the great visionary, Honorable Dr. Ajay Lanjewar sir. I express my gratitude to Dr. Ajay Lanjewar sir for their constant support of this workshop. Now I read presidential message. The message has been sent by Dr. Ajay Lanjewar sir because he is not here. So I just read this message of President. Good morning to all. It is my great honor to be here to meet all of you with the topic of life skill for physical health in COVID-19 on 7th of June 2020. I am very happy about the organizing team of both colleges of S. Chandra Group of Institute. This online workshop will mainly deal with providing information on health issue, so upgrade your knowledge from this workshop. I am sure that the workshop will be fruitful for the society, faculty, and student. I congratulate the principal of both colleges and the organizer of both colleges. I wish the workshop for success. So thank you, sir, for your valuable, fruitful message for our workshop. Thank you once again to you.
Then I would like to introduce our principal ma'am, Rita Khobragade. She is principal of S. Chandra Mahila Mahavidyalay, Sadakarjuni. She is very helpful and always support to various activities during the time of college time, and she is a very great personality for us. So welcome you, ma'am, in this webinar. Now I would like to invite Dr. Rita Khobragade ma'am for her views about this workshop. So ma'am, you are hearing to me? Yes. Okay. Yes. Okay. Give your views, ma'am. Good morning, everyone. I am Rita Khobragade, officiating principal, S. Chandra Mahila Mahavidyalay, सड़क आज हम यहाँ हमारा डिपार्टमेंट एस चंद्रा महिला महाविद्यालय और डिपार्टमेंट ऑफ हाउस होल्ड बायोलॉजी की ओर से हम आज ये नेशनल वेबिनार किया। इस जगह पे हम लोग कोविड-19 की वजह से हम इसे ऑनलाइन ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके पहले भी हमारे कॉलेज में 2 वेबिनार ऑनलाइन ही लिया है। आज डिपार्टमेंट ऑफ हाउस होल्ड बायोलॉजी की ओर से लाइफ स्किल फॉर फिजिकल हेल्थ इन कोविड-19 इस सब्जेक्ट पर हमारे इस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डॉक्टर छाया लंजे मैम, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। उन्हें मैं इस वेबिनार पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज हम ये जो वेबिनार यहाँ ले रहे हैं और जिन्होंने हमें ये डायस दिया है, उनका मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया गुजार रही हूँ। सम्माननीय इस एस चंद्रा इंस्टीट्यूट के फाउंडर इस एस चंद्रा महिला महाविद्यालय के फाउंडर और जिन्होंने हमें यह डायस दिया है, वह हमारे आदर्श हमारे गाइडेंस डॉक्टर अजय संभाजी लांजेवार सर, इनको मैं दिल से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। उन्हीं के वजह से आज हम इस महाविद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी का एक छोटा सा प्रयोग हम लोगों ने इस पीरियड में किया है। आज एस चंद्रा महिला महाविद्यालय की ओर से वेबिनार के माध्यम से हम हमें और हमारे पूरे टीम में बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ हम लोगों ने ऑनलाइन के बदौलत किया है। आज हम ये सब करते हुए कोविड-19 एक सभी के मन में जो डर पैदा हुआ है, उसके वजह से हम लोग गए 75 दिनों से अपने अपने घर में ही बैठे हैं और इसी कारण हम हमारे महाविद्यालय के मार्फत से, जैसे कि हमारा IQSC कोऑर्डिनेटर सम्माननीय डॉक्टर रोहित सर, ये हमारे महाविद्यालय के IQSC कोऑर्डिनेटर हैं। उसके बाद में NSS कोऑर्डिनेटर SS रामटेके सर, उसके बाद में हमारा महाविद्यालय के सोशल
वर्कर्स एंड सोशल डिपार्टमेंट हमने जिन्हें दिया है, वो जयंत रामटे के सर हो या फिर मेरी पूरी टीम हो, इनके माध्यम से हमने हमारे स्टूडेंट को भी ये जी जो यहाँ अभी फिलहाल अभी जो कुछ भी चल रहा है कोविड-19 की वजह से, जितना भी हमें इसका अवेयरनेस समाज तक पहुंचाने का कार्य हमारे महाविद्यालय में बहुत ही मन से किया है, बच्चों के माध्यम से। जैसे कि छाया लंजे मैम ने आज जो ये वेबिनार रखा है, इसके पहले मैडम ने भी बच्चों को तो हमेशा मैडम झाड़ों के पौधों के बारे में उनको ज़्यादा लगाव है लंचे मैडम को, और वो बच्चों को बताते रहते हैं। इतना ही नहीं, तो अभी जो ये हमारा कोविड-19 का जो भी ये चल रहा है, जो भी हम लोग डरे हुए हैं, जो भी हमारे इसमें जो भी भावनाएं हमें कोविड-19 की वजह से आ रही है, उसको भी लेकर मेरे पूरे डिपार्टमेंट ने हम यहाँ इधर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जब हम रह रहे हैं और हमारी बच्चियाँ भी ग्रामीण क्षेत्र की है, तो उनके मन से डर निकाल के उनको समाज के प्रति उनका जो कर्तव्य है वो समझाकर उन्हें हर गांव में भेजकर हमने एनएसएस डिपार्टमेंट के माध्यम से कोविड-19 का अवेयरनेस किस टाइप से हमारे समाज में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोगों ने बच्चों के माध्यम से बहुत ही एनएसएस के माध्यम से बहुत ही बातें लोगों तक पहुंचाई है। इतना ही नहीं तो हमारे स्टूडेंट हैं सैनिटाइजर किस प्रकार बनाया जाता है उसका भी एक डेमो दिया है। उसके बाद में उन्होंने मास्क बनाए हैं, अभी भी हमारी बच्चियां मास्क बनाती है और हर गांव में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। अभी कोविड-19 की वजह से आई थिंक अभी कॉलेजेस भी बहुत कम इससे चालू होने वाले हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही पढ़ाइए। अभी देखा जाए तो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो क्षेत्र की वजह से हमारी लड़कियां ऑनलाइन तो पढ़ना तो चाहेगी, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी इधर की लड़कियां अभी भी यानी खेती व्यवसाय बोलते हैं जिसे, उससे संबंधित है। जबकि जब हमारा सेशन चालू होता है तब हमारे गांव खेड़े में लड़कियों को खेती पे जाना पड़ता है, और इस वजह से और ये सब लेते हुए हमारे क्षेत्र में अभी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है कि हम किस तरह हमारे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दें, हम अपने बच्चों को किस तरह से समझाएं ये सब बातें। और ये सब करते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें कुछ तो भी हमारा मेंटली डिप्रेशन हमको आ रहा है। आज हमारे 75 से 80 दिन हो गए हैं, हम लोग कोरोना वायरस की वजह से डिस्टर्ब है। हम लोग सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित है, बैठे हैं। आज हम लोग को देखा जाए तो कोरोना की वजह से जैसे भी हम लोग तो सुरक्षित है, अपने घर में ही बैठे हैं, लेकिन जो भी लोग लॉकडाउन पीरियड में फंसे हुए थे, जो भी लोग मजदूर वर्ग है, वो सब बाहर आ रहा है। और उस बाहर आ रहे मजदूर वर्ग को हम लोग जब देखते हैं, जब टीवी चैनल पे हम लोग जब उन्हें देखते हैं, तब हमें भी खौफ पैदा होता है कि किस तरह से आज हम लोग देख रहे हैं उनको पैदल आ रहे हैं, चप्पल नहीं है, उनके पैर में छाले आ चुके हैं, या तो फिर इतना ही नहीं तो बहुत से चलते चलते बच्चे गुजर गए हैं, बहुत से डेथ हो चुकी है। इतने हम लोगों ने देखा रेलवे ट्रैकर पे कट के कुछ लोग मर चुके हैं, और ये सब का प्रभाव हमारे भी ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए दिखाई देना है। आज हम लोग देख रहे हैं, आज मैडम ने बहुत ही सुंदर ऐसा सब्जेक्ट इस वेबिनार के लिए चुना है, लाइफ स्किल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से हमारी लाइफस्टाइल बदल चुकी है। हम लोग जब मॉर्निंग में उठते थे, हम लोग सब अपनी तैयारी करके हम लोग कॉलेज जाते थे, कॉलेज में जाके अपना दिन भर का फेस टू फेस स्टूडेंट के सामने हम लोग रहते थे। वो एक अच्छा हम लोगों को उसका यानी उसके वजह से हम लोगों को बहुत यानी
दिन भर का फ्रेशनेस लगता था। लेकिन अब हम लोग बच्चों के सामने न जाते हुए उनको मोबाइल के माध्यम से देखेंगे या तो फिर डिजिटल के माध्यम से हम जब देखेंगे, जो भी हमारे बीच का डिस्टेंस है, फिजिकली डिस्टेंस है, उसमें तफावत हमको तो दिख ही जाएगी। ये बहुत इसमें हमको देखने को मिलता है। और इसी वजह से हमारा सब्जेक्ट ही होम साइंस है। हमारे महाविद्यालय में होम साइंस, गृह अर्थशास्त्र और बीए और होम साइंस, ये 2 फैकल्टी हम लोग जब चला रहे हैं, तो हमारी प्रायोरिटी बन रही है कि हम भी बच्चों को या समाज को इस माध्यम से हम अवेयरनेस करें कि अपना हेल्थ किस टाइप से रखना चाहिए। हमें अभी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, हम आने वाले हर परिस्थिति का सामना हम कैसे कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल किस तरह से अपन चला सकते हैं, हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अभी अपने को खुद को जीना है, खुद को। आज तक के अपन तो यानी मन मर्जी से जीते थे और मन मर्जी से घूमते फिरते थे, लेकिन अभी कहीं तो भी अपने पे भी बाइंडिंग लगाई जा रही है कि मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, उसके बाद में घूम रहे हो तो कुछ डिस्टेंसिंग का वापर करो। ये सब बातें आते समय में कहीं तो भी मन में डर लगा रहेगा और ये डर जो है वो उसका परिणाम अपने पूरे बॉडी में होता है, उसका इफेक्ट अपने बॉडी में आएगा। यही आज हमारे इस वेबिनार के माध्यम से हम सभी को डॉक्टर कटरे मैडम, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे इस वेबिनार को आकर हमारा यह हौसला उन्होंने बढ़ाने का प्रयास वो करेंगे। और वो उनका जो टॉपिक है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जीवन कौशल्य किस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि अभी तो जीवन शैली बदलने वाली है और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा किस तरह बनाए रखें, उसके बारे में श्री माननीय डॉक्टर प्रीति कटरे मैडम, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत ही अच्छे समय पे हमें हमारे वेबिनार को ज्वाइन होकर आप हमें कोऑपरेट कर रही है और आपका मैं मन से बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप हमें ज्वाइन किया, हमारे मैडम का आपने मान सम्मान रखा, हमारे पूरी महाविद्यालय की टीम की ओर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। आज जो भी ये वेबिनार में ज्वाइन हुए हैं उन सभी का मैं इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ और डॉक्टर छाया लंजे मैडम, आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप आगे की प्रोसेस चालू करे हैं, इसलिए मैं आपको शुभेच्छा देती हूँ। और आज आप सभी इस टॉपिक को लेकर एंजॉय करेंगे, यही मनोकामना करती हूँ और आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, madam, for your valuable guidance. And this is happening with your support, not without your support. So thank you once again, ma'am. Now, after then, I would like to introduce today's honorable resource person, Dr. Preeti Katre, ma'am. आप ये प्रोग्राम का आत्मा हो मैम, so you welcome in this workshop. She is Dr. Preeti Katre, ma'am, is a senior homeopathic doctor. Ma'am has completed BHMS and PG in medicine from London University, London. She is a gold medalist as well as topper throughout the years. She got awards for yoga on state level. She is vice president of Arogya Bharati district, Gondia. Dr. Preeti ma'am has also conducted 5 to 6 yoga camps like Stop Diabetes, Start Yoga, as well as published YouTube videos on national and international level. She has 25 years experience for homeopathic practice. We welcome you, ma'am. I would like to invite
Dr. Preeti Prashant Katre ma'am for her valuable information about life skill for physical health in COVID-19. But before that, I would like to publish one video of ma'am, and this video is very useful as in form of नमस्ते. So मैडम ने आपके लिए नमस्ते भेजा है और वो एकदम अलग हटके टाइप से भेजा है, तो सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ये मैडम का नमस्ते हम एक यूट्यूब के थ्रू दिखा रहे हैं. हाँ some error happening in technical problems, so wait for 1 minute. नमस्ते. नहीं नहीं, आओ कुछ अलग ट्राई करते हैं. नमस्ते. नमस्ते मतलब हम आपके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं. हेलो. नमस्ते यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह है हमारे देश की पहचान, जिसे दिया है दुनिया ने सम्मान. सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्ते. नमस्ते आपके अमूल्य संस्कारों को, मेरे अमूल्य संस्कारों का नमस्ते. नमस्ते आपकी दिव्य आत्मा को, मेरी आत्मा का शत शत नमस्ते. So wonderful ma'am, thank you Preeti Katre ma'am. Now I would like to invite Dr. Preeti Katre ma'am. Please start your session with our blessing as well as your power of yoga. So ma'am, you are hearing to me? Doctor, are you ready ma'am? या मैम. आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, clear. So do start ma'am. या. हेलो, नमस्ते. वैसे तो मेरा नमस्ते का वीडियो आप सभी ने देखा है, बट फिर भी मेरा एक सामने फेस टू फेस और एक नमस्ते. दोस्तों, मैं एस चंद्रा कॉलेज की जो दोनों ब्रांच है उसकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे अपने वेबिनार के लिए इनवाइट किया है, और स्पेशली छाया रंजे मैम जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं. तो मेरा जो भी नॉलेज है बेस्ट टू बेस्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ. मैम, जैसे अभी जैसे हमने सुना है कि आपके प्रिंसिपल मैम ने कहा कि अभी जिस तरह का डर का माहौल बन रहा है, जिस तरह से आप डर रहे हैं, तो इसमें हमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है.
ये जो भी मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये सब कुछ हमें हमारी सुरक्षा के लिए करना है। ये जो लॉकडाउन हो रहा है ये हमारी सुरक्षा के लिए, सरकार जो भी कर रही है ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए। आप सोचिए कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं या हमारे जितने भी दोस्त हैं, पुलिस हो और बाकी सफाई कर्मचारी हो, वो सभी फील्ड पे काम कर रहे हैं और हम आए दिन न्यूज देखते हैं कि उनमें से कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इस जो कोरोना वायरस से वो संक्रमित हो रहे हैं। तो हम सभी तो फील्ड में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम सबके अलग अलग प्रोफेशन है, लेकिन हम सब अपने घर में लॉकडाउन हो करके या बंद रह करके वो जो वॉरियर्स है हमारे, उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे मोदी जी ने भी कई बार इन लोगों का सम्मान भी कराया है कि आप सभी उनका सम्मान करिए, और हम सबसे अच्छा सम्मान उनका इसी तरह कर सकते हैं कि अगर हम हमारे घर में रह करके करें। लेकिन घर में जब हम रह रहे हैं तो हमारी सारी सोशल एक्टिविटीज जो है वो टोटल बंद हो गई। अब सोशल एक्टिविटी अगर नहीं होगी तो नेचुरल है कि हम सब बोर होने लगेंगे, और जब हम बोर होंगे तो जो यूजुअल तरीका जो होता है बोरियत को दूर करने का, वो होता है खाना और दिन भर बिस्तर में चुपचाप पड़े रहना। तो ये जो दिन भर जो खाना और बिस्तर पे पड़े रहना है, इससे हमारा जो फिजिकल है, जो हमारा जो फिजिक है, वो सब गड़बड़ हो रहा है। तो इस फिजिक को मेंटेन करने के लिए हमें ये जो वेबिनार जो मैम ने अरेंज किया है वो इसीलिए किया है कि हम ऐसे अपने फिजिकल लाइफ स्किल को सीखें, ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारी फिजिकल जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, हम अपने आप को बीमार ना बनाए। क्योंकि आपने देखा होगा या अभी तो न्यूज चैनल्स में हम देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है या दूसरी कोई भी बीमारी हो, सिर्फ वायरस की बात नहीं है, कोई भी बीमारी हो, अगर हमारा फिजिक अच्छा ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ ना हो, तो बीमारी तुरंत अटैक करती है। जैसे हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में हमें घर पे रहना है, लेकिन जो हमारा जो पेट है वो खाना खा खा के बाहर निकले जा रहा है, उसके ऊपर में लॉकडाउन का कोई असर नहीं हो रहा है, वो बाहर बाहर जाते जा रहा है। तो उस चीज को रोकने के लिए हमें इस समय कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ योगा को पालन करना चाहिए। ये जो बेसिक एक्सरसाइज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये बहुत ही सिंपल है, इसे आप अपने घर में खुद भी कर सकते हैं, और स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो भी योगा नहीं कर पा रहे हैं या वॉकिंग पे नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें आप घर में बिठा करके भी करवा सकते हैं। और ये इतने बेसिक लेवल का है कि आप इसे घर में बैठ करके चेयर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई स्पेशल मैट या जिम के इंस्ट्रूमेंट या ऐसी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसे हम बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से घर पे कर सकते हैं। तो ये जो मेरा लेवल है इसका, ये बहुत ही बेसिक लेवल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन है जो एस व्यासा, जो बैंगलोर की एक संस्थान है, उन्होंने ये स्टार्ट किया है और उन्हीं के थ्रू ये सब काम चल रहा है। ये स्पेशली आरोग्य भारती का एक कैंपेन है जिसमें हम डायबिटीज और बाकी दूसरे मधुमेह और हार्ट की प्रॉब्लम है, इसको रोकने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए हम ये काम करते हैं। तो ये उसी का एक पार्ट है, क्योंकि ये कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम किसी चीज को रोक सकते हैं तो वो उसका ट्रीटमेंट करने से ज्यादा बेटर है। तो ये जो लॉकडाउन का भी जो हमारा फेज चल रहा है, हालांकि अभी अनलॉक होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी हमें सारे अनुशासन का पालन करना ही होगा। बहुत सारा समय घर पे ही बिताना होगा, वर्क फ्रॉम होम करना होगा। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आप घर में बैठ करके, चेयर पे बैठ करके खुद भी कर सकते हैं और अपने घर के सारे परिवार के लोगों के साथ में, सीनियर सिटीजन्स के साथ में इसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग इसे स्टार्ट करें। तो क्या आप लोग मेरे साथ करने के लिए तैयार हैं? तो आइए, सबसे पहले हम अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे, हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेंगे और इसे की शुरुआत करेंगे। तो मेरे साथ में आंख बंद करके मैं एक मंत्र पढ़ रही हूँ, इस मंत्र को मेरे साथ में दोहराइए। बोलिए, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे बोलिए, हाथ नीचे रखिए। अब हम अपने आसन की शुरुआत
अपनी गर्दन से शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने गर्दन की एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। इसके जो भी बेनिफिट्स हैं और जो भी चीजों को नहीं करना है, ये मैं धीरे धीरे आपको सब साथ साथ में समझाते जाऊंगी। तो सबसे पहले हम गर्दन से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहले हम अपना करेंगे, ठीक है। तो सारे निशांस को हम अभी 5-5 बार से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप चाहें तो उसे फिर बाद में बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम 5 बार से शुरू करेंगे। ठुड्डी को छाती के भाग से टच करना है और फिर पीछे की तरफ ले जाना है, ऐसे। इसे हम 5 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब गर्दन को हम साइड टू साइड मूव करेंगे। दोस्तों, गर्दन की जितनी भी एक्सरसाइज होती है उसे बहुत ही स्लो करना होता है। ज्यादा इसमें घाई नहीं करना है या गड़बड़ नहीं करना है। गर्दन में किसी भी तरह का झटका नहीं लगना चाहिए। 1, 2, 3। इसके पश्चात हम गर्दन को, यहाँ के जो मसल्स की एक्सरसाइज है, इसके लिए हम यहाँ साइड से अपने कंधों पे से टच करेंगे, ऐसे। गर्दन बिल्कुल भी कंधों को भी नहीं उठाएंगे। गर्दन को धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकाएंगे। 2, 3, 4, 5। गर्दन के साथ में अब बारी आती है हमारे हाथों की। हाथों के हर जॉइंट को हमें मूव करना है। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, ये एक्चुअली पवन मुक्तासन की है। तो इसमें हमको फिंगर के हर जॉइंट को ऐसे मूव करके फिर पूरा टाइट खोलना है। तो इसे पूरी एक एक उसको मोड़िए, जोड़ों को मोड़िए और सीधे टाइट करिए। 2, 3, 4, 5। ठीक है। हम कोहनी की करेंगे। कोहनी की एक्सरसाइज में हाथ को ऐसे ले जाना है, पाम्स को शोल्डर पे टच करना है और सीधे ऐसे। और जब आप इस तरह करते थे, ऐसे सोचिए कि आपके सामने में कोई दीवार है और उसे आपको धक्का लगाना है। आप उसे धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। अब यही हम साइड से करेंगे। एक धक्का लगाइए दोनों साइड से। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब दोनों हाथ टाइट करिए, बिल्कुल टाइट, ढीला नहीं, है ना। और छोटे छोटे सर्कल बनाइए सामने की तरफ। 2, 3, 4, 5। अब पीछे की तरफ हाथ बिल्कुल ढीला नहीं करना है। 1, 2, ठीक है। अब इसके बाद हम हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स है, शोल्डर ब्लेड के लिए करेंगे। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और गर्दन के लिए काफी उपयोगी है। और पीछे की तरफ से ठीक है। कुछ लगा, कुछ तकलीफ या कुछ महसूस हुआ? अब इसके बाद में हम तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। तिर्यक ताड़ासन से जो हमारे साइड्स की जो फैट होते हैं, इसमें काफी हेल्प मिलती है। तो ये जो आपका एक हाथ है, अभी आप राइट हैंड से लीजिए, राइट हैंड एकदम सीधा टाइट रखिए और ये वाला जो लेफ्ट हैंड है उसे आपके कमर पे रखिए और झुकिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, श्वास लेते हुए ऊपर। इस तरह से हम 5 बार करेंगे।
यही प्रक्रिया हम लेफ्ट साइड से दोहराएंगे। हाथ एकदम टाइट रखेंगे, कान से सटा के। कुछ महसूस हो रहा है आपको पेट में? ठीक है, अब हम पैरों से शुरू करेंगे। अब आइए पैरों की बारी। प्रेशराइज नहीं करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते जाना है। अब इसके बाद में हमारी बारी है एंकल जॉइंट्स की। एंकल जॉइंट्स को पूरा रोटेट करिए। एक बार क्लॉकवाइज करिए पूरा 5 बार। अब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम घुटने का करेंगे। यूजुअली 35-40 के बाद में घुटने की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो अपने जो दोनों हाथ है उसे इस तरह से अपने पैर को पकड़ लीजिए। अब एक, आपसे जितना संभव है उसे उठाते जाइए पैर को। अब दूसरे पैर में। दोस्तों ये था हमारा वार्म अप का सेशन। इस वार्म अप के सेशन में हमने हमारे शरीर के सभी जॉइंट्स पे मूवमेंट लाए हैं, सभी जॉइंट्स पे मूवमेंट आई है। अब इसके बाद में बचा है हमारी कमर के लिए। तो कमर के लिए आपको दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। तो ये जो प्रक्रिया है, जो हम जिसमें हाथ ऊपर ले जाते हैं, इसे श्वास लेते हुए आप ऊपर ले जाइए जितना आपसे जमता है, पीछे की ओर झुकिए और फिर श्वास छोड़ते हुए सामने झुक करके दोनों पैरों को पकड़ना है। जब हम सामने की ओर झुकते हैं तो पूरा अपने पेट को अंदर की ओर खींचिए। तो ये था हमारी कमर के लिए। तो ये था हमारा वार्म अप सेशन। वार्म अप सेशन में हमने हमारे शरीर के सभी जॉइंट्स को, सभी जॉइंट्स की एक्सरसाइज की है। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है क्यों जरूरी है? इस एक्सरसाइज के जरिए, योगा के जरिए हमारे सभी जॉइंट्स की हर एक मूवमेंट में मूवमेंट होती है। उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, उसमें ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और वहां से जितनी भी डेड सेल्स है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। वहां पे जो मृत कोशिकाएं हैं वो वहां से बाहर हो जाती है, या उसमें जो विषैले पदार्थ जमा है वो सब बाहर निकल जाते हैं। अब इसके बाद में हम करेंगे जो चेयर पे जो सूर्य नमस्कार करते हैं। मैं आपको आज सूर्य नमस्कार सिखाती हूँ। तो मेरे साथ में आज हम 2 राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार के। अगर आपको लगे तो आप इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार के इसमें 10 पार्ट है, 10 आसन आसन। जैसे आप जानते हैं नॉर्मल सूर्य नमस्कार के 12 रहते हैं, लेकिन जो चेयर योगा है इसमें 10 आसन का ये कॉम्बो है, 10 आसन का सेट है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रणामासन। भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए, उनका मन में ध्यान में करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, पीछे की ओर झुकिए, पीछे अगर दीवार है तो उसे पकड़िए। ये प्रक्रिया आपको सांस लेते हुए करना है। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर जाइए, जमीन को टच करने की कोशिश करिए। इसके बाद ऊपर आइए, आपका जो राइट पैर है उसे पकड़ के अपनी ओर खींचिए, दोनों हाथ से पकड़ के खींचिए और गर्दन ऊपर। ये एक अश्व संचलन का भाग है। इसके बाद में सांस छोड़ते हुए आपकी जो ठुड्डी है उसे अपने घुटने से लगाने की कोशिश करिए। ठुड्डी या फिर आप माथा लगा सकते हैं ऐसे। इसके बाद में पैर को नीचे करिए, फिर वापस ऊपर दीवार को टच करिए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए सामने। अब बारी आई लेफ्ट पैर की। अब लेफ्ट पैर को मोड़िए, फिर ऐसे संचलन करेंगे। पीछे की ओर देखिए, सामने अपनी ठुड्डी को टच करिए, फिर पैर नीचे करिए, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे,
अभी प्रणमासन। ये हमारा एक राउंड था सूर्य नमस्कार का। अब हम एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रणमासन। उम्मीद है आपको ये राउंड समझ में आए होंगे। इस सूर्य नमस्कार के हम नॉर्मल तौर पे 12 राउंड कर सकते हैं। हमें 12 राउंड करना चाहिए इसके, और ये बहुत ही आसान है। चेयर पे आप इसे बैठ के बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम श्वास की प्रक्रिया करेंगे। श्वास में हम सबसे पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए आप चाहे तो चेयर पे पैर मोड़कर बैठ सकते हैं या पैर नीचे लटका कर भी बैठ सकते हैं। हम दोनों उंगलियों को ऐसे मोड़ के चिन्ह मुद्रा में लेंगे। राइट हैंड से आप ये चिन्ह मुद्रा बनाइए। नाक को दबाइए, एक तरह की नासिका को दबाइए राइट हैंड की, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट वाली नासिका से श्वास लीजिए। अब लेफ्ट वाली को प्रेस करके राइट से छोड़िए। यही प्रक्रिया फिर राइट साइड से दोहराना है। इस प्रक्रिया को हम 9 बार करेंगे। दोस्तों, सांस लेते समय, छोड़ते समय नाक से बिल्कुल भी आवाज ना करें और मन की शांत अवस्था का अनुभव करें। इसके बाद हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति हमारे पेट की मूवमेंट के लिए, पेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन कपालभाति करने के लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट को पूरा अंदर की ओर खींचिए। जैसे हम लंबी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते समय पूरा पेट अंदर। आपका जो नाभि का भाग है उससे अपने पेट को पूरा अंदर खींचने की कोशिश करिए। तो यह प्रक्रिया को हम 10 बार ही करेंगे। अभी लंबी सांस अंदर लेंगे और जब सांस छोड़ते हैं तो उसे हम अपने पेट को पूरा अंदर खींचने का प्रयत्न करेंगे। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पूरी ताकत से सांस को बाहर छोड़िए। लग रहा है इधर थोड़ा लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। जितना लंग क्या वो ज्यादा करते हैं, आप जल्दी से उनसे संक्रमित हो सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है कपालभाति, इससे आपका जो लंग का प्रेशर है, लंग की जो कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ेगी। तो इसे आप एक बार फिर से दोहराइए मेरे साथ में। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को पूरी ताकत के साथ में पेट का प्रेशर छोड़िए। हुआ कुछ दर्द महसूस? अभी बाद में हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने पर रखिए और मेरे साथ में सांस, लंबी गहरी सांस लेंगे। आपकी जो तालू है उसे जीभ के ऊपर विभाग में टच करेंगे, तालू से टच करेंगे जीभ को, और सांस छोड़ते हुए न का उच्चारण करेंगे। तो यह प्रक्रिया को, इसको हम 9 बार करेंगे। गहरी लंबी सांस ले और न को बोलते हुए सांस को छोड़ना है।
दोस्तों, अब इसके बाद हम शवासन का अभ्यास करेंगे। आज मैं आपको एक अलग तरह से शवासन कराऊंगी। अभी तक अगर आपने कभी योगा के कैंप अटेंड किए होंगे तो आपने शवासन अगर किया होगा तो हमने हमेशा देखा है कि शवासन में वो हमें बाहर की दुनिया में घुमाते हैं, कभी पेड़, कभी पौधे, कभी पहाड़। लेकिन आज जो मैं आपको शवासन कराऊंगी ये सबसे अलग होगा। तो आइए मेरे साथ में शवासन का अभ्यास करते हैं। अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। अगर आप घर पे और आराम से हैं तो आप सोफे पे लेट सकते हैं, या आप अपने पैर को रिलैक्स करके आराम से बैठिए, दोनों पैर एकदम रिलैक्स। आंखें बंद करिए, शरीर को पीछे पे टिका लीजिए, बैक रेस्ट पे। पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला, पूरा रिलैक्स। लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। पूरे शरीर को एकदम ढीला कर दीजिए। कहीं कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं है। बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अपने मन को अपनी दोनों आंखों के बीच में केंद्रित करिए। सोचिए कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों हैं। अपने बचपन को याद करिए, बचपन के खुशी भरे दिन को याद करिए। याद करिए जब आप कॉलेज में जा रहे थे, आप पढ़ रहे थे, आप कितने खुश थे, कोई तनाव नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। और आज हम सब तनाव से ग्रसित हैं। हर वक्त एक टेंशन दिमाग में है। आपके उस समय के शरीर को याद करिए, आप कैसे थे, आपका शरीर कैसा था। अपने दिमाग को अपने शरीर पर लगाइए। आपका पेट पतला था, पेट पूरा अंदर की तरफ था, चेहरे चम। आज क्या है, आज हम सब कहीं ना कहीं से बाहर निकलते जा रहे हैं। हमारा पेट बाहर जा रहा है। चिंताओं ने हमें हर समय घेर के रखा है। हर वक्त हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, कभी घर के बारे में, कभी बच्चों के बारे में, कभी मकान के बारे में, कभी बिजनेस के बारे में, कभी जॉब को लेकर। हर वक्त चिंता। क्या कभी हमने अपना जीवन अपने लिए जिया है? हर वक्त हम तनाव में हैं। हर वक्त हम दौड़ रहे हैं कुछ पाने के लिए। हर वक्त एक डर बना हुआ है हमारे अंदर, ये डर जो हमें बीमारी की ओर ले जा रहा है। आप जानते हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, उन्होंने आज से 200 साल पहले ही बता दिया था कि 90% जो बीमारियां होती हैं वो मानसिक तनाव के कारण होती है। और आज हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा पेट बढ़ते जा रहा है, ये मानसिक तनाव का नतीजा है। और जैसे जैसे पेट का घेरा बढ़ते जा रहा है, हर तरह की बीमारियां हमारे आसपास आ रही है। अगर नहीं आई है तो आने के लिए हो रही है। डायबिटीज, मधुमेह, बीपी, ओबेसिटी, तरह तरह की अलग अलग बीमारियां। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी रात दिन का मानसिक तनाव और हमारा अपने ऊपर ध्यान ना देना।
तो दोस्तों कुछ पल हमें हमारे लिए जीना है। अगर हम ज्यादा समय ना निकाल सके तो कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना हमारी कैपेसिटी है उतना समय अपने लिए निकालें। बी विथ योर सेल्फ। कम से कम हम अपने लिए जिए। हम अपने आप को पहचानते ही नहीं। हम अपने आप से इतना भागते हैं कि थोड़ी देर भी अगर खाली हम हैं तो हम सिर्फ टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया इसमें बिजी है। हमको हमारी कंपनी पसंद नहीं है, तभी तो हम इधर उधर एक दूसरे का साथ देखते हैं। दोस्तों अपने आप को एंजॉय करो, अपनी कंपनी को एंजॉय करने की कोशिश करो, क्योंकि जो वक्त आपने अपने लिए बिताया है वो सबसे अमूल्य है। हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। उसने ये नहीं कहा है कि धन दौलत या बड़ा मकान। उसने कहा है कि आपका अपना शरीर सबसे पहला सुख है। तो उस पहले सुख को हम भूल गए। अपने उस पहले सुख को याद करिए। आज से आप प्रॉमिस करिए, अपने आप से प्रॉमिस करिए, किसी के साथ मत करिए। अपने आप को वचन दीजिए कि आप अपने समय से, अपने 24 घंटों में आधी घंटा अपने लिए निकालेंगे। आधी घंटा आप एक्सरसाइज करेंगे और अपने आप को बीमारियों से दूर रखेंगे। तो इन्हीं अच्छे वचनों के साथ में हम एक शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका जीवन सुखी हो, सबका जीवन सफल हो, सब शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, सबके जीवन में आनंद हो। मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, अपनी सोसाइटी को, समाज के लिए मैं अच्छा काम करूंगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में अपने दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाइए। इसके बाद एक बार फिर से रब करिए, अपने दोनों गालों पे लगा करके एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखें खोलिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। Preeti ma'am, wait. हाँ Uh, हाँ only 2 questions. हाँ मैम So, बोलिए। question first coming from Dr. Sandhya Wahane ma'am. हाँ Question is, how to release knee problems forever? मैम नी प्रॉब्लम कैसा है ये? हाँ हाँ बोलिए। घुटने की तकलीफ कम करना है। हाँ, ओके ओके, हाँ और कुछ? बस इतना ही क्वेश्चन है। हाँ मैम, घुटनों की जो प्रॉब्लम होती है यूजुअली ये 35-40 के बाद में ही आती है हमें, और ज्यादातर उसका जो कारण रहता है वो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होती है। बट उसके साथ में लैक ऑफ एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हमारे पास में एक्सरसाइज नहीं है और अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, डाइट जो न्यूट्रिशियस हो, ऐसी डाइट को अगर हम नहीं ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। तो इसके लिए आप प्रॉपर डाइट लीजिए और एक्सरसाइज पे अपना ध्यान दीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन एक्सरसाइज कंपलसरी है, एक्सरसाइज करिए और खाना प्रॉपर लीजिए। ओके, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइम इज बेस्ट फॉर योगा? मैम योगा आप कभी भी कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग, मैं जैसा मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जैसा आपने मेरा जो वीडियो देखा, नमस्ते का वीडियो देखा है, और वो जो फ्लेक्सिबिलिटी आपने देखी है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मैंने 3-4 साल में ही इतनी फ्लेक्सिबिलिटी को लाया है। मैंने इसके पहले मैं ऐसी फ्लेक्सिबल नहीं थी।
ये जो जितनी स्ट्रेचिंग मैंने दिखाया आपको, ये मतलब उसके बाद ही आई है, 3-4 साल में ही ये आई है। तो ये जो योगा है ये हम कभी भी कर सकते हैं, ये हम हमारे कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी आप एक्सरसाइज या योगा करते हैं तो 3-4 घंटे पहले आप कुछ ना लें, आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, आपका स्टमक खाली होना चाहिए। बाकी इसको आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम रात, आप जब भी करना चाहे करें। बस एक चीज का ध्यान दें कि आप पेट खाली रहे आपका और दिमाग में शांति हो। जल्दी जल्दी करके भाग भाग करके नहीं करना है, उससे लॉस ज्यादा होगा। किसी तरह का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए, बिना तनाव के आपको ये एक्सरसाइज को करना है। Okay, ma'am. Next question is for increasing lung health, which yoga is helpful? मैंने अभी आपको बताया कपालभाति और भस्त्रिका, ये बहुत ही बेस्ट है। जो स्पेशली कपालभाति है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। स्पेशली जब हम सांस को छोड़ते हैं ना, तो उस समय ध्यान देना कि जो पेट है इसको पूरा अंदर खींचे, क्योंकि जितना हम पेट को अंदर खींचते हैं तो लंग की जो अंदर की जो बची हुई एयर है वो पूरी बाहर निकलती है और इस तरह से लंग्स में फ्रेश एयर आती है। तो इसे और उससे आपका जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो बढ़ती है। तो इसके लिए आपको कपालभाति करना चाहिए, जैसे जो मैंने बताया करने का आपको तरीका, उससे अगर आप करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। और कम से कम उसके 10-10 के 2-3 सेट्स आपको करना चाहिए। और अनुलोम विलोम तो बेस्ट है ही। Okay, ma'am. Now next question is, how is yoga different from stretching or other kinds of fitness? मैम योगा बहुत डिफरेंट है बाकी की जिमिंग एक्सरसाइज से। योगा का जो बेसिक जो फंडा है उसमें स्ट्रेचिंग ज्यादा है। स्ट्रेचिंग इन द सेंस उसमें आप समझिए कि उसमें इलास्टिसिटी बढ़ती है। जैसे अगर हम कंपेयर करें, एक तरफ जिम है और एक तरफ अगर योगा है, तो जिम में ज्यादातर कैसा होता है, वेट लिफ्टिंग होती है और ओवर बर्डन होता है बॉडी के ऊपर में। आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, मतलब आप एक तरह से अपने बॉडी को प्रेशराइज करते हैं। जैसे आपको 5 मिनट में इतना दौड़ना है या आपको इतने हैवी वेट को उठाना है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी के ऊपर में एक स्ट्रेस डाल रहे हैं, एक तनाव डाल रहे हैं बॉडी को कि आपको ये करना है। लेकिन वही योगा अगर हम देखते हैं तो योगा एक बहुत ही सिंपल, जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है, बहुत ही सिंपल, दिमाग को एकदम शांत करते हुए आपके मानसिक तनाव को कम करने वाली एक्सरसाइज है। इससे आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी बढ़ती है। इलास्टिसिटी जैसे कि हमारा जो स्ट्रेचिंग पावर है, वो स्ट्रेचिंग पावर आप बढ़ता है, तो आपके जो मसल्स है वो रिलैक्स होते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके ब्लड का सर्कुलेशन जो है आपके हर पार्ट में, जैसे अभी हमने जो किया है वो पवन मुक्तासन किया है, पवन मुक्तासन में आपने हर एक जॉइंट की एक्सरसाइज की है। तो इसमें जितने भी जॉइंट्स है उसमें आपको ऑक्सीजन वहां तक पहुंचता है और वहां के जो डेड सेल्स या जो विषैले पदार्थ जो वहां जमा है वो सारे फ्लो होकर के निकलते हैं। जिम में हालांकि बहुत ज्यादा पसीना आता है, लेकिन योगा और पसीना आने से आपके बॉडी के जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है वो भी आपके लॉस होते हैं, विटामिन मिनरल्स या जो जितने भी बाकी के जो सॉल्ट्स है वो कम होते हैं। लेकिन योगा में आपको उतना पसीना नहीं आएगा, लेकिन आपके जो अंदर के जो विषैले कीटाणु है वो सब निकल जाते हैं। सेकंड, आपकी बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो बहुत तेज होता है। जैसे हम भ्रामरी करते हैं तो भ्रामरी में आपके ब्रेन का सर्कुलेशन बढ़ता है। सर्कुलेशन बढ़ने से जो ब्रेन के जितने पार्ट है जहाँ ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है, वहां तक के ऑक्सीजन आपको पहुंचता है। तो इससे आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, आपकी इलास्टिसिटी है, मेमोरी है, हेयर प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स उसमें आपके कम होते चलते हैं। जिमिंग से जो मैंने जितने भी लोगों को देखा है कि जो रनर है, प्लेयर है, इनको एक एज के बाद में वो उतना कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उनको जॉइंट प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम ही आना शुरू हो जाते हैं। बट जो एक योगा करने वाला रहता है वो 80, 90, 100 साल तक के अगर वो है तो वो प्रॉपर तरीके से उतने सारे एक्सरसाइज कर सकता है, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई दूसरे उसको रिलेटेड इश्यू आते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। तो ये जो है बेसिक जो डिफरेंस है जिम और योगा का, ये बेसिक डिफरेंस है कि इसमें आपको सर्कुलेशन और इलास्टिसिटी में बहुत फर्क पड़ता है और शारीरिक और मानसिक किसी तरह का कोई तनाव नहीं आता इसमें, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर करते हैं। Okay, ma'am. Next question coming from Dr. Bhagat sir. What will you recommended yoga or meditation? सर योगा और मेडिटेशन एक्चुअली दोनों में बहुत डिफरेंस है। मेडिटेशन आपको ब्रेन को, माइंड को रिलैक्स करने के लिए है, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए है, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन ही सब कुछ नहीं है, आपको एक्सरसाइज भी जरूरी है। ये जो पैक अभी जो हमने किया है, ये दोनों का कॉम्बो पैक है। इसमें आपको योगा भी है प्लस आपको मेडिटेशन भी है।
क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के साथ में है, दोनों म्यूचुअल है, एक के बिना एक अधूरा है, ऐसा है। हमारे जैसा मैंने कहा ना कि हम बहुत तनाव में जीते हैं, लेकिन मेडिटेशन से हम उस तनाव को कम करते हैं। तो एक्सरसाइज से हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और मेडिटेशन से हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो हम जो भी हमारा प्लान करते हैं, तो प्लान में ऐसा होना चाहिए कि अगर हम 20 मिनट स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट हम मेडिटेशन भी करें। तो आप इससे मेंटली और फिजिकली दोनों लेवल पे आप रिलैक्स होते हैं। Okay, ma'am. Next question is coming from Gajbe sir. Question is, which is the main exercise for hyperthyroidism and hypothyroidism? सर हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में जो बेसिक मेन एक्सरसाइज है वो भ्रामरी है। भ्रामरी प्राणायाम जो हम करते हैं तो उसमें गले से, यहाँ से जो हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उससे काफी फर्क पड़ता है थायराइड के पेशेंट्स को। बाकी की स्ट्रेचिंग तो हम करते हैं, लेकिन भ्रामरी से बहुत फर्क पड़ता है। आप आंख बंद करके 11 बार भ्रामरी का ओम का उच्चारण करिए सामने देख करके, फिर 11 बार साइड और 11 बार साइड, यानी और पूरा फोकस जो है अपनी ये जो थायराइड ग्रंथि है इस पर करिए, आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। Okay, ma'am. Now question is done. Thank you very much, Dr. Preeti Katre, ma'am. Very, very valuable, information has been given by Dr. Preeti Katre, ma'am. Actually, our health and fitness are more valuable than our wealth. Yeah. So, thank you, ma'am, once again. And this yoga is necessary during the pandemic period. In fact, our elders were focused on the health and fitness part. Network problem है ma'am, not clearly what you. Network issue आ रहा है. Okay. So okay ma'am, our participants maintain good health after this workshop. Thank you ma'am. Next. Okay ma'am. Okay. Okay. After then, I would like to introduce Dr. Sumida Lanjewar ma'am of Yash Chandra Mahila Mahavidyalaya Sakoli. She is principal of this college, and this program, that means workshop, associated with Yash Chandra Mahila Mahavidyalaya Sakoli. So now I would like to invite Principal Sumida Lanjewar ma'am. Please give your view about the workshop. Sumida ma'am, are you ready? Sumida ma'am? Hello. I request to you ma'am, start your views of, about this workshop. Hello madam, आवाज येते? Yes ma'am, yes. All clear. अच्छा ठीक है. But you are not visible ma'am. Okay. Hello everyone. Yes. Hello everyone. I would like to thank Dr. Ajay Lanjewar sir, founder of Yash Chandra Group of Institution, and my colleague for organizing such an important workshop in this pandemic phase of COVID-19. And first of all, I would like to thank Honorable Dr. Preeti Katre Madam for such an informative session workshop, which we all need in our physical health in pandemic phase of COVID-19. आजच्या या पॅन्डेमिक फेज मध्ये कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे आपल्या शरीरावर जो घातक परिणाम झाला आहे, तसेच लॉकडाऊन मुळे आपण मॉर्निंग वॉक, जिम किंवा इतर
एक्सरसाइज जे आपण जे करू शकत नाही किंवा जे बाहेर जाऊन आपण करत होतो ते आता आपल्याला शक्य नाही. तर ते आजच्या सेशनमुळे आपल्याला त्याचा उत्तम पर्याय हे आपल्याला डॉक्टर प्रीती कटरे मॅडमनी इथे उपलब्ध करून दिला आहे. त्यांनी जे आपल्याला घरच्या घरी करू शकता असं चेअर योगाबद्दल जे सांगितले आहे ते खरंच खूप परिणामकारक आहे आपल्यासाठी. आणि लॉकडाऊनमुळे जे आपल्या शरीरावर फिजिकल हेल्थ आणि मेंटल हेल्थमध्ये जो त्याचा परिणाम झाला आहे, दुष्परिणाम झाला आहे, त्याचा म्हणजे घरच्या घरी राहून आपण योगा करून जे त्याचा आपण फायदा त्यांनी जो सांगितला आहे ते आजच्या सेशनमुळे आपल्याला त्याची बरीच माहिती मिळाली आहे. चेअर योगामुळे आपली फिजिकल हेल्थ तर चांगली होतेच, तसेच मानसिक ताणतणाव दूर राहून आपलं मानसिक आरोग्य पण चांगले राहते, हे त्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे. तर त्यांच्या या सेशनचा फायदा आपण यानंतरही ठेवू अशी मी सगळ्यांना म्हणजे म्हणजे आपण त्याचा फायदा आपल्या यानंतरच्या काळामध्ये होईल असं मी गृहीत धरते. तसंच यानंतरचं सेशन माझ्या कॉलेज मधल्या प्रोफेसर भूमिका कापगते मॅडम कंटिन्यू करतील असं मी त्यांच्याकडे हँड ओव्हर करते. हॅलो. Thank you, Sumedha, Dr. Sumedha Lanjewar ma'am. Now I welcome Assistant Professor Bhumika Kapgate ma'am. She is HOD of Food Science and Nutrition, as well as she is co-convener of this program. So welcome you to the online workshop program, ma'am. Okay. Thank you, Lanjay ma'am. आवाज येत आहे माझा? Yes. Okay. All things is Thank you, Lanjay ma'am. Hi everyone. Myself, Assistant Professor Bhumika Kapgate. Today we organize online one-day state level workshop on life skill for physical health in COVID-19. Our speaker, Honorable Dr. Priti Katre ma'am, said that how yoga and physical activities are important for good health. Apart from yoga and physical activity, nutritional health also important for that. We must eat healthy and complete diet. We must eat vegetables, meal, eggs, etc. etc. Everyone should make a diet chart and ensure that we take a sufficient amount of carbohydrates, protein, fats, and vitamins. We take a sufficient apart from eating, we must maintain cleanliness in our room, house and surrounding. I would like to thank Honorable Dr. Ajay Sambhaji Lanjewar sir, President of Adivasi Shaikshanik Sanshodhan Sanstha, Sadak Arjuni. I thanks to our speaker, Senior Homeopathy and Gold Medalist Dr. Priti Katre ma'am for giving valuable information on life skill, yoga and physical health in COVID-19. Also thanks to our principal Rita Khobragade ma'am and Dr. Sumedha Lanjewar ma'am. I also thanks to Dr. Chaya Lanjewar ma'am, HOD of Household Biology, and I also thanks to all team members of H. Chandra Mahila Mahavidyalaya Sakoli and H. Chandra Mahila Mahavidyalaya Sadak Arjuni. I thanks to Bhujade sir for technical support. Thank you very much. Thank you, Bhumika madam, for out of thanks, but this program is not end here. This program end after song Jana Gana Amana. But before that, I would like thanks to other participants out of Maharashtra.
So Visual ma'am, PES Ravi Naik College of Arts and Science from Goa. She is not from Maharashtra, but Visual ma'am involved in this workshop by interest. Then Dr. Shilpa Bhosle ma'am, Dempo College, North Goa. Ajit Farad sir, Goa Multi-Faculty College, South Goa. Dr. Manasvi Kamath, Goa Multi-Faculty College, Goa. Dr. Pratibha, Dempo College, North Goa. So thanks to all these out of Maharashtra participants for your participation. Now I request to all participation, please stand up for Jana Gana Mana song, and after then this program will be end. Jana Gana Mana Adhina. Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you to all participants. Your cooperation is must for our energy. Thank you very much. Thank you very much, Mayur, Chetna, Gun, for supporting. Thank you very much.